ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਲਾਹੇ ਸਚ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਣਦਾਸ। ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਲਾਹੇ ਸਚ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਣਦਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ। ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਹੈ ਪਰਗਾਸ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਏ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਉ। ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ, ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਰ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਡਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਧੰਦੇ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਤਿਆ
कि ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਹੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਬਲ ਰੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮਾਈ ਹੈ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਕਮਾਏ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਫਰੇਬ ਹੋਵੇ, ਕਪਟ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਹ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮਾਈ ਹੈ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਕਮਾਏ। ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਜ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਲਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤੇ ਆਧਾਰ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ,
पर अजकल के कई लोग ये भी कह देंगे हैं कि बाबे गुरु गोबिंद सिंह जी ने उत्थे सिखां दे सिर नहीं कट्टे, बकरे कट्टे, भाव उन्हां दी मत छोटी है, उन्हां दा गल मन मनदा ही नहीं गा भी बंदा आए धौन तो वढ़ के जोड़िया जा सकता है कि बंदे की धौन वड्डी जावे ते बंदा लड़ाई कर सकता है। बाबा दीप सिंह जी ते भी टीका टिप्पणी करते हैं भी धौन वड्डण तो बाद बंदा किवें लड़ सकता, तुसीं नहीं लड़ सकते, पर उत्थे एक कला वरती है। जिन्नी सुन के मन्निया तिन्ना निज घर वास, उन्हां दा मालक दे घर वासा हुंदा है जिन्हां ने गल सुन के मन लई। जिस तरह राजे जनमेजे नूं कोढ़ हो गया सी कि उस कोढ़ नूं हटाउण वास्ते उसने राजगुरु ने कहा कि तैनूं अपने वड्डियां दी कथा सुननी चाहिदी है। ये राजा जनमेजा कौरां पांडवां चों होया अगला राजा, ये तो पहला कौरव पांडव हो चुके हैं। कहते तैनूं अपने वड्डियां दी कथा सुननी चाहिदी है, फिर तेरा एक कोढ़ हट सकता है। ते नाल ऋषि ने यह भी इनू आग्रह कर दिता, पहला सुचेत कर दिता भी कथा सुनदिया होया किसी गल ते तू ये ना कहीं भी ये नहीं हो सकता। को सतनाम श्री कहने लग्या ठीक है मैनू कथा सुनाओ, ते कथा सुनाउणी शुरू की। ते जदों पांडवां दी कथा सुनाउंदे सुनाउंदे पहुंचे ना भी तुहाडा एक बजुर्ग इन्ना तकड़ा सी, इन्ना तकड़ा सी, उन्हें हाथी नूं सुण तो फड़ के चला के मारिया ते आकाशां 'च पहुंच गए, हजे तक उत्ते घूमदे फिरदे आ। हुण जनमेजे दी मत उत्थे नहीं पहुंची, पर उसने इस ते टीका टिप्पणी करती भी ये किवें हो सकदा। पहली गल तां हाथी दा वेट ही बड़ा है, उहनूं किवें कोई चला के मारूगा। दूजी गल आकाशां विच किवें खड़ूगा। कोढ़ इहदा लगभग सारा हट गया सी, एक नक्क दे विच कोढ़ दा फोड़ा रह गया सी इहदे, बस फिर उसे फोड़े नाल ही मर गया। पर उस तो पहला जदों इहने टीका टिप्पणी कीती ते उस ऋषि ने फिर इसनूं कहंदे दिखाया, कहंदे आ देख मैं तैनूं घुमदे विखाउणा। उहने अपनी ताकत दे नाल एक घुमदा होया पिंजर थल्ले सिट लिया ते कहंदे आ देख हाथी दा पिंजर है ना। भाव इन्नी पावर हो सकती है, कोई वड्डी गल नहीं। सैंस दे विच पावर है, सैंस विच मगरों पावर आई है, गुरु विच पहला पावर है, भगती विच पहला पावर है। भगत कुछ भी कर सकते हैं। जे सैंस सैटेलाइट कैमरिਆਂ ਨੂੰ उत्ते भेज सकती है, ਜਿਹੜੇ उत्ते घूम रहे थले नहीं डिगते, उत्तों साडे संसार दीयां फोटोआं खिच के थले भेजी जाते आ, फिर पांडवां की गल भी सही हो सकती है, इन्ने तकड़े हो सकते हैं। हो को सतनाम श्री। पर जनमेजे ने इस ते गुरु प्यारिओ कट मारता, कहता ये नहीं हो सकता, कहने फिर तू भी नहीं रह सकता, हुण तेरी भी मौत आई लै। कहो सतनाम श्री। कोढ़ दे फोड़े नाल ही मर गया। कहण तो भाव है जिन्नी सुन के मन्निया, सच की गल है, झूठ की गल नहीं करते। जिन्हां ने गुरु की गल सुन के मन्नी तिन्ना निज घर वास, वो अपने मालक के घर पहुँच जाते हैं। गुरमति सलाहे सच हर पाया गुणतास। गुरु की मत नूं लै करके जिहड़े वो सच्चे की सिफत सलाह करते हैं, उन्होंने गुणों का खजाना परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। शब्द रते से निर्मले, वो परमेश्वर के रंग विच रंगे जाते हैं। उन्हां दी आत्मा पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, जिन्हां ते शब्द का रंग चढ़ गया। अनोखी गल 10वें पातशाह जी के समय की, उन्हां दा एक सेवादार रोजाना ही सतगुरां कोल आउंदा है, उही घोड़े वाला भाई बेला। और पातशाह कहने बेलिया बाणी भी सिख ला, महाराज कर दो कृपा। कहते चंगा मेरे को आया कर, एक पंक्ति मैं तेनों सिखाया करूँगा, वो सारा गाई जाया कर। कहना जी ठीक है। हुण बेला रोज समा कढ़ के गुरु साहब नूं मिलदा है, ते गुरु साहब इनू एक पंक्ति दे दिंदे आ। जपजी साहब तो शुरू कर दिता काम।
और सारा दिन वो पंक्ति रटता रहिंदा, घोड़ियां की सेवा करता रहिंदा। दूजे दिन आउंदा पातशाह कहते कल वाली सुना, एक कल वाली सुना रहिंदा, फिर अगली लै जांदा। एक दिन की होया, ये बेला किते थोड़ा बहुता लेट हो गया तो गुरु साहब ने किधरे जाना सी, घोड़े ते सवार, तैयारी हो चुकी है तुरन दी, ते भज्जिया भज्जिया महाराज जी अगली पंक्ति दे दिओ। पातशाह ने वेख्या भी उन्हें पंक्ति लैन आ गया तो मैं तैयार हाँ किधरे जान। पातशाह कहने भाई बेला ना वेला वेखे ना कवेला, ना तो घोड़ियां की सेवा करता बेला कवेला वेखदा। ते अज पातशाह ने उदा कहा बई तू वेखता लै पहला, मैं तो कम चलिया, तू लेट हो गया अज। वाह भाई बेला ना वेला वेखे ना कवेला। ते हुण की कीता इहने, जाके यही पंक्ति रटनी शुरू करती, सारा दिन यही पंक्ति रटता रहा। वाह भाई बेला ना वेला वेखे ना कवेला। ते दूजे दिन आया महाराज जी अगली पंक्ति दे, कहने कल वाली। उन्होंने ये नहीं कहा भी कल कोई पंक्ति दिती नहीं गई, उन्हें उही सुनाती जी महाराज के मुख चों निकली सी। कहते जी तुसी कल कहा सी वाह भाई बेला ना वेला वेखे ना कवेला, कहते ये तो तेन बस लैके कहा सीगा, ये बाणी थोड़ा ही आ। पर नहीं, सिख दे वास्ते गुरु के मुख चों निकलिया हर बचन बाणी है, कोई सतनाम सी कुछ भी कहता गुरु। तो वो भोले भाए सिख ने भाई बेले ने सतगुरां दे इस बचन नूं भी याद कर लिया कि सेवा विच तत्पर रहना, बेला कवेला नहीं देखना, जो करना है वही करना। तो कहन तो भाव है जिन्हों ने गुरु की गल मन ली उन्हों का भला हो जाऊगा, जिहड़े नहीं मनणगे वाह मर उन्हों की मर्जी। फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकाउण वेले सारियां नूं खुला सद्दा दिता भी आओ गुरु वाले बन जाओ, तरक्कियां हो जाणगियां तुहाडीआं, तुहानूं पक्के राजे बना देंगे। पर दिल्ली वाले कहते भी असी तो महाराज तंबाकू नहीं छड्ड सकते, असी धोती जनेऊ नहीं छड्ड सकते, कशहरा नहीं असी पा सकते, बड़ा औखा लगता। जात पात भी छड्डनी बड़ी औखी है महाराज, शरीका कबीला की कहूगा। तो माड़े भागां वालियां नूं इहो जे नैगेटिव सोच आ जाती है, वो नैगेटिव सोच उन्होंने गुरु तो दूर लै जाती है। चंगे भाग होंदे आ ते अंदर चंगी सोच पॉजिटिव आउंदी आ, वो गुरु के नेड़े ले आउंदी आ। मेरे प्रीतम जी कहते शब्द रते से निर्मले हों सद बलिहारै जास, हिरदै जिन कै हर वसै तित घट है परगास। इयों जिन्हां दे हिरदे विच हरि दा बचन, परमेश्वर का नाम जो गुरु के मुख तो सुनिया वस गया, जिन्हां दे हिरदे विच गुरु के मुख तो सुनिया वचन वस गया, उत्थे प्रकाश हो जाता है, भाव उत्थे सोझी आ जाती है, ज्ञान हो जाता है। पर कईयां ने इस प्रकाश नूं दीवे की लाट समझ लिया। एक संस्था इत्थे चली, वो कहते आओ असीं तुहानूं तुहाडे मत्थे चों जोत विखाईए। ते गुरु प्यारे हो उन्होंने पंक्तियां दे गुरबाणी दे होर ही अर्थ कढ़ के दसने शुरू किए। तां उन्होंने लोगों को कहा भी आ देखो ये दीवे की लाट ही जोत है, तुसीं तां दीवे की लाट की गल करदे हो, बाबा तो हज़ारां सूरजां नूं कट्टी जांदा, उहदे सामने कख दे नहीं। कहो सतनाम, दीवा किन्ने रखदा? दीवा वो जोत के सामने किन्ना क तकड़ा है जिहदे सामने हज़ारां सूरज लखां चंद्रमे छोटे आ। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण होंदे आ गुरबिन घोर आधार। फिर वो किहड़ी जोत है? दीवे की लाट है? बिल्कुल नहीं, वो है ज्ञान। ज्ञान के सामने हज़ारां सूरज, हज़ारां चंद्रमे, सैकड़े चंद्रमे, ये सब कुछ छोटा है जिथे ज्ञान है। ज्ञान के नाल तुसीं हनेरे विच भी काम कर सकते हो, सूरज की लोड़ नहीं पैनी, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश अंदर है। लाइट चली जाती है, तुसीं जिहड़ी डब्बी लभदे हो पहला माचिस, वो हनेरे च ही लभदे हो ना। दिमाग के ज्ञान नाल भी इत्थे कि जे रसोई च रखी सी, वो अंदरले ज्ञान तो काम लैने, उत्थे लाइट तो है ही नहीं। हुण कहो सतनाम श्री, फिर लाइट जगा ली तुसीं माचिस लभ के।
सो इस करके अंदरले प्रकाश की गल की है, ज्ञान की। जिहड़ा ज्ञान का प्रकाश है इन्हां हज़ारां सूरजां तो भी वड्डा है। जिवें परमेश्वर के सचखंड बारे भी गुरु साहब कहते जिथे परमेश्वर का वास है उत्थे कितना प्रकाश है। जदों भाई साहब भाई मरदाना जी धन गुरु नानक देव जी साथी गए, ध्रुव तक पहुँच गए, यात्रा करते सुमेर पर्वत की ध्रुव ते पहुँच गए। तो ध्रुव भगत कोल जा बैठे, गल्लां बातां चलियां। ते धन गुरु नानक देव जी उत्थे कहने मरदानिया तुसीं इत्थे बैठो, मैं थोड़ा गाहां जाया। वो उत्थे बिठा दिता उन्होंने। तो गुरु नानक देव जी उत्थों अगे चले गए। जदों अगों वापस मुड़ के आए ना, तो भाई मरदाना जी कहने तुसीं कित्थे गए सीगे? कहने मैं तो परमेश्वर कोल गया सचखंड। ते वाह महाराज सानू ज्यों चक्किया वो पाकिस्तान तो, उदों पाकिस्तान तो नहीं सीगा, ननकाना साहब तो नाल लिया, सानू रकड़ां दे विचों हुंदे उच्चियां नीवियां थावां तो हर थां लैके गए, ते सानू सचखंड क्यों नहीं लैके गए? कहने मरदानिया जान के नहीं लैके गया। ध्रुव भगत जी कहने जी उत्थे तुसीं परमेश्वर देख के आए हो, किहो जा? गुरु नानक देव जी कहने क्या पुछदे हो भगत जी? उत्थे लखां सूरजां दा प्रकाश हो रहे, भाव सचखंड विच ज्ञान दा वासा है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, ते जिथे ज्ञान है उत्थे आनंद विनोद खुशियां सुख भी है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड़ आनंद प्रचंड होंदा है। जिवें अग दे भांबड़ निकलते कितना प्रकाश हो जाता है, पर यह तो गर्म है, वो ठंडा है, वो सतनाम, वो शांति देने वाला है। ध्रुव नूं कहन लगे महाराज क्या पुछदे हो स्वरूप के बारे? क्योंकि स्वरूप तो है ही नहीं ज्ञान का, तो रब का स्वरूप कित्थों दसन ज्ञान का, जब स्वरूप ही कोई नहीं। ज्ञान तो प्रैक्टिकल जीवन के विच हंडाया जा सकता। ताइयों पातशाह नूं कहना पिया चक्कर चिहन अर वर्ण जाति अर पात नाहन जे, रूप रंग लेख पे को कह न सकत के। बाबा नानक जी कहते ध्रुव जी क्या पुछदे हो? उस सचखंड दे विच इन्ना प्रकाश के मनुख दीआं अखां झुंधिया जांदियां, भाव ज्ञान दे सामने अज्ञानता शर्मशार हो जाती है। तो सतनाम सी जिथे ज्ञान है, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए, उगवे सूर न जापै चंद, जा सूरज चढ़दा चंद्रमा तारे लभदे ही नहीं भाले, जा ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत। जिथे ज्ञान का प्रकाश उत्थे अज्ञानता का खात्मा हो जाता। इस करके मेरे प्रीतम जी कहने ध्रुव जी उत्थे तो बहुत प्रकाश हो रहा सी, शांति देने वाला, आनंद देने वाला। मैं उहदे बारे पूरा दस नहीं सकता तुहानूं वो किहो जिहा सी। ध्रुव भगत जी ने भी देखिया, वो भी बड़े भगत होए है। जदों बाबे नानक जी ने बचन कहा तो ध्रुव जी उठ के उन्होंने पैरी पै गए, कहने महाराज केड़ा परमेश्वर है? तुसी खुद ही तो परमेश्वर हो, तुसी ही नानक बन के थले गए हो, तुसी ही किसे वेले प्रहलाद भगत की रक्षा की सी, तुसी ही मैनू दर्शन दिते सीगे, ये तुसी खुद ही हो। और सतनाम, और कोई रब नहीं है। भाव परमेश्वर जिहड़ा है जीवां दे विच ही वरतदा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत्त है, सतगुर होए लिखावै। ध्रुव जी दे पैरी पै गए, सतगुरु नाम पातशाह दे पैरी पैन लग्या ध्रुव। ते गुरु नानक देव जी कहते तुसी भी घट नहीं हो भगत जी, तुसी भी रब दे रूप ही हो। भगत जी उन्होंने पैरी पैंदे, बाबा जी उन्होंने पैरी पई जाते। भाव दोनों एक दूजे को इन्ना प्यार करते हुए गलवकड़ी च ही ले लिया एक दूजे को। को सतनाम कहते महाराज तुसी खुद ही रब हो। रब होर कित्थे है? रब जीवां दे विच ही वसदा है। जिन्हां ने गुरु की गल मान ली उन्होंने परमेश्वर की जानकारी हो जानी आ। फिर मरदाने की गल आ गई। मरदाना कहना मैनू नाल क्यों नहीं लैके गए?
सानू इत्थे को छड्ड के गए, सासी भी देख के आउणा सचखंड। पातशाह कहन लगे मर्दानिया तैनूं मैं जान के नहीं लैके गया, जे मैं तैनूं लै जांदा नाल, क्योंकि उत्थे जांदा कल्ला कल्ला, नाल कोई किसी दे जांदा ही नहीं गा। कहंदे जे मैं तैनूं नाल लै जांदा, परमेश्वर ने पुछना सीगा नानक ये कौन आ, ते मैं दसना सीगा भी ये जी मेरा मर्दाना मरासी आ, ये रबाब बजाउंदा हुंदा, रागी आ मेरा, ये कीर्तन करदा महाराज। जो मैं दसदा भी ये रागी है, साडा रबाब बजाउंदा है, परमेश्वर ने कहना सी बजा के दिखा, तो तू रबाब बजा के दिखा देनी सी, परमेश्वर ने तैनूं उत्थे ही रख लेना सी। फिर मैं की करदा, कोई सतनाम सी। हुण मरन नूं तैयार कोई नहीं, रब नूं सारी पाउणा चाहुंदे आ। मरदाना कहंदा फिर तां वधिया हो गया, मैं उत्थे नहीं रहना सी, कोई सतनाम सी, मैं तां तेरे नाल ही रहना। मरदाना कहंदा फिर तां वधिया होया जी, चल चंगा होया। बाबा जी ने इउं उस नूं ढंग दे नाल समझा दिता, असल दे विच उहदे कोले जांदा ही कल्ला कल्ला है, कोई सतनाम सी। उथों फिर धरू तो पातशाह दूजी साइड तो होके वापस मातलोक नूं आए। तो कहण तो भाव है कि यह है गुरु की गल, जिन्हां ने मन लई, जिन्हां ने हिरदे विच धारण कर लई। हिरदे जिनके हर वसे, जिन्हां ने गल जान ली कि हिरदे विच हरि दा वस है। घट घट मैं हरजू वसै, संतन कहो पुकार। उस हरि दा वासा हरेक दे हिरदे विच है, उत्थे ओनू प्रकाश होना शुरू हो जाता है, भाव सोझी आ जाती है, ज्ञान हो जाता है। मन मेरे हर हर निर्मल त्याए, ताते आ गुरु की गल मन के हरि नूं जपिया करिए। ओ आहे गुरु, ओ आहे गुरु, ओ आहे गुरु, ओ आहे गुरु, वाहे गुरु। जिन्हों वाहिगुरु कह रहे हो ना, उन्होंने ऐदा ना कहो भी किते दूर बैठा है, उन्होंने अपने हिरदे में जान के कहो कि मेरे कोल ही बैठा, मैं उन्होंने सुनाउणा ते वो सुनदा है। कोई सतनाम सी। जिवें भाई गोपाला जी ने जपजी साहिब का पाठ सुनाया, सामने पातशाह बैठे हैं, मैं उन्होंने सुना रहा। इसी तरह सिखा तू सिमरन करता होया अपने अंदरले नूं सुनाउणा शुरू कर। पर यह गल बहुतियां दी नहीं, बिरलियां बिरलियां दी बनदी आ। धुर मस्तक जिनको लेखिया, से गुरमुख रह लिव लाए। जिन्हां दे मत्थे दे वड्डे भाग है, जिन्हां नूं धुरों ही परमेश्वर ने बख्शिश कीती है, असल विच ओहो ही अपने हिरदे दे अंदरले नूं पछाणदे आ। नहीं तो लगभग दुनिया तीर्थां की यात्रा ते लगी हुई है, भटकना विच लगी हुई है, लभदी फिरदी आ रब नूं, पर लभदा किते। जिवें पिछे आपां पढ़िया सीगा, एक साध आके तीजे पातशाह नूं कहंदा जी मैं मणिकरण गया सीगा, बड़ी सुंदर जगह है वो तीर्थ, सारियां मनोकामना उत्थे पूरियां हुंदियां बंदे दीयां। उत्थे शिव जी ते पार्वती आए। बाबे नानक वारी भी साखी चलती है भी उत्थे बाबा नानक ते मरदाना भी गए। तो गुरु प्यारे हो, जदों जाके ये साध ने गुरु अमरदास जी नूं ये गल कही, महिमा की मणिकरण साहिब की तीर्थ की उसकी, तो गुरु साहब जी कहते नहीं साधो, सतगुर नूं सिमरो। कोई धरती कोई तीर्थ चंगा या माड़ा नहीं, सारी चंगे आ जिथे नाम जपण वाले बैठ गए। पर असल विच गुरु की कृपा है। हाँ सतगुर सेवी अपना, एक मन एक चित भाए, सतगुर मन कामना तीर्थ है। गुरु ही मनोकामना पूरियां करने वाला असली तीर्थ है, कोई होर नहीं। जिसनों दे बुझाए, जिन्हों गुरु गल समझा देवे, गल तो समझण वाली असल दे विच उस ज्ञान नूं विवेक नूं जानना है। नहीं तो बड़ी दुनिया भटकदी फिरदी है। प्रीतम जी कहने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पांच जना से संग न छुटकियो, अर के अहम बाधे प्यारे, इन विद मिल न जाई। मैं किए कर्म अनेका, दुनिया बड़े कर्म कांड करदी आ, ऐ नहीं मिलता। फिर सोनू किवें मिलिया महाराज? पंजवें पातशाह नूं पुछया सिख ने,
सोनू किवें मिलिया? कहने मैं गुरु के चरणों च गया। हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। मैनू गुरु रामदास जी ने कृपा की, विवेक बुद्धि समझण वाली बुद्धि दी। फिर पता लग्या भी रब की चीज़ है। नहीं तो दुनिया तो फिर तीर्थां ते तुरी फिरदी है, उच्ची उच्ची बांगा दे के बाहरों आवाज़ां मारदी है, पता नहीं बाहर कित्थे बैठा वो तो सब दे नाल बैठा है। इस करके जिन्हां दे वड्डे भाग हुंदे आ उन्हां नूं गुरु मिल जांदा है। पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे। अंकुर हुंदा है बीज दा फुट के धरती चों बाहर आ जाना। जदों किसी दे पूर्वले भाग प्रगट हो जाते हैं, उगरदे है, तो फिर उसनूं परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत हुंदी आ। को सतनाम। फिर वो संगत दे विचों उहनूं ज्ञान हुंदा। पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे भेटे ओ पुरख रसक बैरागी। अगे लिखते न जन्म जन्म की सोई जागी। जिहड़ी आत्मा कई जन्मां तो मेरी जमीर सुत्ती पई सी, वो गुरु ने जगा दी, ज्ञान हो गया। धुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रह लिव लाए रहाओ। हुण परमेश्वर नूं कित्थे वेखना? गुरु अमरदास महाराज जी दस रहे न, परमेश्वर नूं कित्थे वेखना? नदर कर निकट वसै भरपूर। ते जिन्हां ने गुरु की मत लैके इस पिछे ते रिसर्च की, जानना किया, बुझना किया, समझना किया, गुरमत जिन्नी पछाणी आ, जिन्हां ने गुरु की मत लैके इस पासे ते ध्यान लाया, नेड़े वेखना शुरू किया। हुण नेड़े इन्ना क देख लो कि तुहाडी अख खुली रहे, बंद ना होवे, पर जिन्नी हुण खुली आ इन्नी भी ना खुले। नेड़े लिजांदे लिजांदे नेड़े पहुंच जाओ आपदे, पर अखीर ते जाके बंद होवे, उत्थे देखना बंद हो जाऊगा, उत्थे दिसना चाहिए। भाव अख का चौथा हिस्सा, चार गुण साडी अख विच हन। रजो तमो सतो गुणा विच हुण साडी अख खुली आ पूरी। तिन्ना गुणा में साडी अख खुली रहिंदी है। कोई चुगली करदा अख होर खुल जाती है, दुबारे दसी की हो गया? ये तीन गुणा दे विच साडी अख पूरी खुलती है, रजो तमो सतो च। पर चौथा गुण है जिहड़ा, उत्थे साडी अख चौथा हिस्सा खुलती है। मिल्क सौनी जिहनूं कहंदे आ, ये बड़ियां डूंघियां गल्लां प्रीतम दियां। इस गल नूं समझना बड़ा औखा है। असी उच्ची उच्ची कही तो जाने, नितनेम करी जाने, माला करी जाने, वाहिगुरू वाहिगुरू। ओ मुंडिया ओ कट्टा खुल गया, मुड़ के आओ उहनूं को सतनाम। फिर ध्यान कित्थे आ? कट्टे च बाहर फिरदा है। जिथे वाहिगुरू कह रहे हैं उत्थे अख नूं भी लै जा, को सतनाम सी। जे तेरी अख नहीं उत्थे जा रही तो फिर तेरी माला फेरी भी बेकार है, को सतनाम सी। गुरमत जिन्नी पछाणिया से वेखे सदा हदूर। गावे को जापै दिसै दूर। आवाजा मारदा पता नहीं वो परले पासे फिरदा किते दूर, लेकिन जिहड़ा वेखदा है वो नेड़े तो नेड़े वेख के ये कहंदा कि वो मेरे नाल आ। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हादूर। धन गुरु नानक देव जी कहते कथना कथी ना आवे टोट। मैं ओदी क्या कथा करा, ओदी कथा नहीं मुकदी, को सतनाम सी। मेरे वर्गे किन्ने कह के तुर गए इथों, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। प्रीतम जी कहते आओ उसनूं नेड़े तो नेड़े देखिए। जिन्ना क नेड़े वेख सकते हो, अख बंद नहीं होनी चाहिए। जिन्ना थल्ले नूं जावांगे आपां नेड़े वेखदे जावांगे, जिन्ने पड़क तां चक्की जावांगे साडी निगाह दूर चली जाएगी। ते दूर वेखण दी लोड़ नहीं, बाबा जी कहंदे नेड़े वेखो। बस ये गिठ 10 उंगलां जिहड़ा तुहनी तो लैके नाभि तो लैके तुहाडे गले तक वसिया होया सवास है ना, उहदे विच परमेश्वर दा वास है। ताईओ कहंदे सास सास सिमरै गोबिंद। हरेक सवास ते वेखो, हरेक सवास ते वेखदे होए आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इत्थे वेखदे होए नाल वाहिगुरू जपो। हौली हौली जपण दी लोड़ नहीं पैनी। आमदे अंदर चले जाओगे जपना भी बंद हो जाएगा। उत्थे अजप्पा जाप चलेगा। पहला जाप चलेगा जिवें बचपन विच सानू पढ़ाया 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 हुण नहीं असीं कहंदे, हुण तां उही जोड़ लैने आ 25 ते 50 75 को सतनाम सी।
ਹੁਣ ਤਾਂ नहीं दूनी पढ़ते आपां। पहली अवस्था माला फेरन दी है, पहली अवस्था उच्ची वाहिगुरू कहण दी है, चौथी अवस्था जाके कबीर साहब जी कहते मैं नहीं कहता हुण वो मैनू कहता है। कहो सतनाम माला फेरू ना हर भजो, मुख ते कहूँ ना राम, मेरा राम मुझको भजे तां पाऊँ विश्राम, फिर मैं विश्राम पाउंदा हाँ। तो ये है सिमरन दी जुगत जिहड़ी थां थां बाणी च लिखी हुई है। बंदे खोज दिल हर रोज, दिल च की है सवास, सवासां नूं खोज। हुण सवासां दे विच तेरी जिंद जान है, सवासां दे विच तेरा रब है, वो किधरे होर नहीं वसदा। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगिरी नाहे। मेरे साहा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, इत्थे एक अर्थ असीं करदे हां कि हे मालक मेरा तेरे तो बगैर कोई नहीं, पर दूसरा साडे सवास तो बगैर भी साडा कोई नहीं हैगा। जदों मनुख की जान निकलदी है ना, उदों बंदा सब नूं छड्ड के आपदी जान बचाउण दी कोशिश करदा, सब कुछ छड्ड जांदा है। जे घरे अग लग जे, जे थोड़ी लगी है तो कीमती वस्तुआं कढ़दा, जे थोड़ी जी वध लगी है तो परिवार नूं कहना छेती निकलो मचांगे, पर जे भांबड़ एकदम निकल जाए फिर नहीं किसी नूं कहना, फिर तो आप भज के बाहर निकलदा पहला। कहो सतनाम सी भाव मेरे साहा मैं तुझ बिन अवर ना कोए। ये भी कोई शब्द है बाणी विच कि मालका मेरा तेथों बगैर कोई नहीं है। कौन सवास ही तो लई फिरदा ना, सवास नूं रोकण दी किन्नी कोशिश करदे आ। डॉक्टरां नूं कहने आ जिन्नी संपत्ति इकट्ठी कीती है सारी लै लो, मेरे साह चलदे रहण, मैं मर ना जावां किते। को सतनाम सी गुरु प्यारिओ, इन्हां सवासां नूं रोकण वास्ते चलदे रखण वास्ते असीं जीवन की सारी संपत्ति ला सकते हैं, तो फिर कीमती कौन होया? कबीर साहब नूं पुछ लो। कबीर साहब जी कहते बड़ा रौला पा के कहना सुनता कोई नहीं। कबीर कहता हूँ कह जात हूँ, कहता हूँ ढोल बजाए, 3 लोक का मोल है सवासा, बिरथा जाए। तिन्ने लोक भी असी दे सकते हैं वैद्यां डॉक्टरां नूं, साडी जान नहीं निकलनी चाहिए, साडा सवास नहीं निकलना चाहिए विचों। को सतनाम बादशाह अशोक या सिकंदर कहन लग्या कि मेरी जिहड़ी है मौत, मैं बीमार पै गया, जंग ते गया सी दूर, मैं बीमार पै गया, वैद्यां नूं कहदा मैनूं जल्दी तो जल्दी मेरी मां कोले पहुंचा दिओ, मैं अपनी जिहड़ी है जान मां दी झोली विच बैठ के गोदी विच सिर धर के छड्डनी चाहुंदा। ते वैद जिहड़े हमेशा यही कहंदे आ कि साडे वस विच नहीं। डॉक्टरां दी पर्ची दे उत्ते लिखिया हुंदा है RX, ਇਹਦਾ मतलब है मैं केवल दवाई देनी है, बचाना या ना बचाना ये तेरी मर्जी है, मेरी नहीं। कहो सतनाम सी डॉक्टर भी ये कोई लांभा नहीं लैंदे रब तो। पर्ची के उत्ते RX पाया हुंदा हैगा, ਉਹਦਾ मतलब यही है कि रब की मर्जी है, सवास होए तो बच जाएगा, ना होए तो फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। वैद कहते राजा साहब साडी कोई जिम्मेवारी नहीं तुहानूं मां तक पहुँचाउणा, जे तो परमेश्वर ने सवास दिते तो पहुँच जाओगे, हो सकता है राह च मर जाओ, साडी कोई जिम्मेवारी नहीं। सिकंदर कोले किहड़े पैसे की घाट सीगी, वो अपने आप को बचा सकता सी, पर नहीं, परमेश्वर ने जिन्ने सवास दिते आ उन्ने ही वरत सकता है। पर सवासां दे रहिंदे रहिंदे परमेश्वर नाल जुड़ जाइए, ये बंदे दे कोल है इन्ना क फर्ज। पातशाह जी कहंदे गुरमत जिन्नी पछाणिया से देखे सदा हदूर, जिन गुण तिन सद मन वसे। हुण ये हिरदे विच कदों वसदा जदों साडे विच उहनूं वसाउण वाले लक्षण भी होण। गुण मतलब लक्षण, चंगे लक्षण होणगे तां वसूगा, जे माड़े लक्षण होणगे तो फिर घर वाले भी एक दूजे तो अलग हो जाते हैं। जे मनुख जिहड़ा है वह नशेड़ी है तो बीबी अपने पेके जाके बह जाती है, जे बीबी के लक्षण नहीं ठीक तो बंदा उन्हें छड्ड के परे हो जाता है। फिर परमेश्वर हिरदे विच किवें बचे, तेरे गुण ही चंगे नहीं है। को सतनाम जिन गुण जिन्हां विच गुण है उन्हां दे हमेशा कोले रहिंदा, भगतां दे कोले रहा।
भगत नामदेव नूं किन्ने वारी दर्शन होए। उन्होंने जदों भी कोई घटना घटी कहते वाह मालका आ द्वारकापुरी दे विच मैनूं समझ नहीं आउंदी भी द्वारकापुरी दे विच मुगलों का की काम है। जिस वेले परमेश्वर ने एक ऐसा रूप धार के दर्शन दिते जिहड़ा मुसलमानों का थानेदार हुंदा ना उत्ते फरला छड्डिया हुंदा एक सिपाही का थानेदार की वर्दी है उन्हां दी पग दे उत्ते एक फरला छड्डिया हुंदा है। साडे जिहड़े सिपाही उन्हें लाल रंग की पट्टी बनी हुंदी है निशानी हुंदी है। ते नामदेव की यात्रा ते गए ते पहुँच गए द्वारकापुरी के इलाके ते जाते जाते फुरना बन गया यार किते कोई घोड़ी हुंदी ते यात्रा सौखी हो जाए ते आ गया लैके घोड़ी फुरना सुन जाई ते घोड़ी देण तो पहला घोड़ी के दुखों के बारे दसना चाहता भी घोड़ी तो रख लेगा मुड़ के थोड़े दुख भी आउणगे। कहना ओ उरे आ भाई उरे आ। थानेदार का रूप धारिया घोड़ी ते चढ़े आ भगत जी कोले आ गए हथ बन के हाँ जी ओ मेरी घोड़ी सूपी यार बछेरा चक। कहने यार मंगी चढ़न सी चक पै गई कहो सतनाम तो उल्टा काम हो गया। पर एडी छेती कित्थों आ गया थानेदार घोड़ी लैके एदा मतलब है थानेदार नहीं कृष्ण आप आया कहो सतनाम। वो कृष्ण जी की पूजा करते सी और ये सोच के दिमाग दे विच बई ये भी मेरे नाल चालां खेडदा ते मैं भी इहनूं पछाण लिया। कहंदा खुश खबरी बड़ा सुंदर लगता है आला तेरी पगड़ी तेरी पकड़ बड़ी सुंदर है पग और तेरी बगार जी मैनू बगार पई है। थानेदार पुछदे बगार पाउंदे हैं चल भैया काम करके दे साडा इनू बगारी कहंदे आ। तेरी बगार भी बड़ी चंगी आ बछेरा चक्कण नूं दिता मैनू मैं चक लेना पर पहले मैनू ऐ दस भी तू है कौन। वो कहे तेन दिसदा नहीं गा दबके मारी जाता दिसदा तो मैनू जो है ना बाहरों पर अंदरों तू वो नहीं लगता गा कोई सतनाम सी। कहना बछेरा चक लो पर मैनू ऐ दस भी तू है कौन। मैं तो ऐ लगता जिवें तू कृष्ण हुंदा कोई सतनाम सी मेरा मालक मेरा बीठन मेरा ठाकुर हुंदा। कहना तेनू यार दिसदा नहीं गा मैनू दिसदा। कहना फिर तो मैं कहना अस्पत गजपत नरह नरेंद नामे का स्वामी मीर मुकंद तू मुक्ति दाता कृष्ण बीठन है मेरा। वो कहना यार तू मैनू इत्थे भी सियाण लिया। कहना यार गल ही मुकाती भी हर थां ते तू रहना है फिर मैं काहदे वास्ते कहा भी तू इत्थे है नहीं इत्थे भी तू ही है। द्वारकापुरी काहे के मगोल द्वारकापुरी दे विच जिथे कृष्ण दा राज है उत्थे मुगलों का की काम है बई। ये भी तो सोचना माड़ा जा कैसा रूप धार के आए हैं। द्वारकापुरी काहे के मगोल तू कित्थों दा मुगल है बई तू तो द्वारकापुरी का राजा लगता मैनू। फिर असली रूप च आ गया कहना लैनी है घोड़ी कहने रहन दे तू तो चकाता सी मैं किनू चुकाऊंगा कदे सूपी जे को सतनाम मैनू घोड़ी की लोड़ नहीं। फिर प्यार के नाल कहते कृष्ण जी नामदेव जी अपने राज विच लै गए। तो इस करके परमेश्वर दा भगतां दे नाल खेडां भी खेडदा पर जिन्हां दे विच गुण है उन्हां नाल ही खेडदा हरेक नाल थोड़ा खेडदा। वो जिन गुण तिन सद मन वसे जिन्हां विच गुण है उन्हां दे नाल रहिंदा है। औगणवंतियां दूर ते जिन्हां दे लक्षण चंगे नहीं जिन्हां विच औगण है जिन्हां दा चंगा जीवन नहीं उन्हां तो दूर ही रहिंदा है। कबीर साहब जी कहते इहो जिहियां तो दूर ही रहो। रब नूं भी कहते हैं महाराज इहो जिहे लोकां तो दूर ही रहो। किहड़े लोकां तो? कबीर साहब जी अपने बचनां विच बख्शिश करदे अपने गुरबाणी दे राही शब्दां विच संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले झख मारी। मूर्खा नाल बोलना झख मारना ही है। संतां नाल बोलांगे तो कोई काम की गल होगी। संत मिला के सुनिए कही है मिला असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है। इस तरह बहुत सारे वचन है भगतां जी दे जिनके इहो जे निंदक लोगों तो औगणवंतियां तो भगतां ने दूर रहन की ही गल कीती है। इहो जे लोगों तो दूर ही रहो।
अगे प्रीतम दी बख्शिश करते हैं। औगणवंतियां दूर उन्हां दे कोले परमेश्वर किवें वसूगा। मन मोह गुण तै वाहरे बिन नावै मरदे चूर। ते जिन्हां विच औगण हन उन्हां दे विच गुण नहीं, ते गुणां तो बगैर वो सारी जिंदगी झूरदे ही मर जाते हैं, भटकदे ही मर जाते हैं। इस करके आओ जिन्हां ने गुरु का बचन सुन लिया, जिन शब्द गुरु सुन मनिया, तिन मन त्याया हर सोए। गल उत्थे फिर चली है, जिन्नी सुन के मनिया मनमुख की गल दस के फिर गुरमुख की गल शुरू कर देन। जिन्हां ने गुरु के शब्द को सुन के जीवन में धारण किया, तिन मन ध्याया हर सोए। अन दिन भगती रतिया, उन्होंने रंग चढ़ता जाता है। लाल रंग तिसको लगा जिसकै बड़भागा, मैला कदे न होवी न लागे दागा। उन्हें रंग चढ़ता जाता है, मन तन निर्मल होए, वो अंदरों साफ होंदे जाते हैं। कूड़ा रंग कुसुंभ का, उन्होंने विचों झूठे रंग निकल जाते हैं, विषय विकार खत्म हो जाते हैं और वो परमेश्वर के रंग नाल भर जाते हैं। कोई सतनाम, कोई गंदे पानी वाली बाल्टी टूटी हेठां रख दो, चलदी हेठां टूटी छड्ड दिओ। जे डोल नहीं सकते उस बाल्टी नूं तां टूटी छड्ड दिओ, एक दिन वो गंदा पानी निकल जूगा, चंगे दी भर जाऊ। इस तरह असी दिमाग नूं डोल तां नहीं सकते इदां करके। इहदे विच गुरु दे गुण रखने शुरू कर दिओ, औगण निकलने शुरू हो जाणगे, एक दिन भर जूगा गुणां दे नाल। कूड़ा रंग कुसुंभ का, जिहड़ा कुसुंभड़े दा कच्चा रंग एक फुੱਲ हुंदे आ कुसुंभे दे, लोग कपड़िਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ रंग चढ़ाया करते सी पहला, पर जदों उन्हां कपड़िਆਂ ते मींह पै जांदा ਉਹ रंग लह जाते। कोई सतनाम सी। तो यह साडा जिहड़ा है झूठ, ये कुसुंबे दे रंगा वर्गा है। नाम जपण वालियां दे विचों झूठ दे रंग निकल जाते हैं। बिन सजाए दुख रोए, जिस उन्हां दी अंदरों निकल के ये दुख भी रोंदे है कि सानू इत्थे ठहरना नहीं मिलिया। जिवें एक बचन है, पातशाह कहते उठ वंजो किल विखो, करता घर आया पापो भज जो, हुण मेरा मालक घरे आ गया। कोई सतनाम सी। विषय विकारां नूं भजना पैंदा। जिस अंदर नाम प्रगास है वो सदा सदा थिर होए। जिन्हां दे अंदर हरि दे नाम का वासा हो गया वो सदा थिर हो गए। थिर हो गए ना 15 भगत, 11 भट्ट, गुरु साहब अते होर इतिहासक सारे सिंह, नाम जपण वाले जिन्ने भी होए अज तक संसार च उन्होंने असी जानते हैं, उन्होंने गल करते हैं। उन्होंने समकाली राजे, अमीर, चौधरी आदि उन्होंने कोई नहीं जानता, क्योंकि वह नाम नाल नहीं सी जुड़े। कोई सतनाम सी। जिहड़े नाम नाल जुड़े उन्होंने असी जानते हैं, वो सदा अमर हो जाते हैं। ये जन्म पदार्थ पाए कै, हर नाम न चेतै लिव लाए। पर जिहड़ा इस मनुखा जीवन नूं लैके हरि दा नाम नहीं ना जपदा, वो सुन लो, पग खिसिया रहना नहीं, इत्थे तुसी रह नहीं सकते, मौत आनी है। आगे ठौर न पाए, सचखंड भी जाना नहीं मिलना। ते जदों इधरले घरों निकल गया, रिश्तेदारी च पहुंचिया नहीं, फिर कित्थे हुंदा है? राहां च भटकदा। कोई सतनाम, फिर तू राहां च ही भटकेगा जे तू गुरु की गल नहीं मनदा। रहिंदे शब्द की विचार आपां अगले समय सरवण करांगे। सो पातशाह जी कहते जिन्हां ने गुरु की गल नहीं समझी, उन्होंने फिर ना इत्थे टिकाणा ना उत्थे टिकाणा। वो वेला हथ आगे ठौर न पाए, वो वेला हथ न आवी, अंत गया पछताए। फिर मरदा होया पछताउंदा है, जिवें औरंगजेब पछताउंदा सी जफरनामा पढ़ के सुन के। ते मरदा मरदा कहंदा मेरी कबर ते कोई दरख्त नहीं लाउणागा, मेरी कबर की कोई साफ सफाई करने की लोड़ नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी विच कोई चज का काम नहीं कर सकिया, मैनू कोई हक नहीं कुदरत दा लाहा लैण दा। ते पछताउंदा होया मरिया औरंगजेब, जदों जफरनामा पढ़ के सुनाया उहदी लड़की ने, उहदी बच्ची ने। तो वो वेला हथ न आवी, अंत गया पछताए, जिस नदर करे सो उभरै, हर सेती लिवलाए। जिन्हां दे गुरु की कृपा दृष्टि हो जाती है, वो नरकां चों निकल जाते हैं, परमेश्वर के चरणों में वस जाती है लिव ला के। देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ न पाए। ये संसार रीसा भी करदा है, रीसा करे तनाड़ियां जो सेवा दर खड़ियां। एक छोटी जी गल करके आपां समाप्ति करते हैं।
कबीर साहब जी कोले कोई आ गया मनुख, कहना भगत जी तुहाडी बड़ी महिमा हुंदी है, तुसी किवें भगत बने हो मैनू भी दस दिओ। वो कहते नाम जपना चाहिए भाई गुरमुखा, सिमन करिया कर। महाराज जल्दी शॉर्टकट कोई छेती भगत बनना, जिंदगी का की पता। कबीर साहब जी कहते छेती नहीं बन सकते, परमेश्वर की कृपा होवे तो 1 मिनट च बन जाइदा। कहते जी इहो जी कोई जुगती दसो। भगत जी ने वेख्या भी बड़ा बंदा काहला है, इहनूं छेती दस देवां जुगती हुण मैं। कहते चंगा देख ला, हुण देखी जाई, ये कुछ तू कर ली जिहड़ा कुछ मैं करदा। कह लगे ठीक है। आवाज मारी अपनी घर वाली नूं, कहते लोई गल सुनो। हथ बन के आ गई, कहते हाँ महाराज। वो अपने घ्यो किन्ना क पिया घरे, कहते जी पिया 2 सेर। कहते चल ठीक है, ऐ कर वो अपना चूल्हा पट के लिया, मिट्टी का कच्चा चूल्हा बनया हुंदा पहला। कहते वो चूल्हा पट के लिया, बीबी गई मारिया बेलना चक के, घोटा चक के, चूल्हा ढाता ते 3 बट्टे चक के लिया के चरना च रखते। लो जी कहते जी हुण की करना। कहते हुण इसनूं कुट बरीक बरीक कर, कुट के कोले बैठ के, क्योंकि लोई भी इशारे समझी सी भगतां दे दोनां दी एक गल सी। उस लोई ने कुट के उस चूल्हे दे बट्टियां नूं बरीक करता। वो कहते छालनी लैके आ, इनू छान समार के, वो छालना लियांदा जां छालनी लियांदी, उहदे नाल आटा छान लिया, वो अपना मिट्टी छान ली सारी, चूल्हे दे बट्टे कुट्टे जेड़े। कहंदी जी लो कुटते, छान भी दिते, छानते जा घ्यो चक के लिया। वो घ्यो चक लियाई 2 सेर पक्का। भगत जी कहंदे घ्यो दे नाल ना मिट्टी नूं गुण दे। कहंदी जी 7 वचन। उन्हें घ्यो पाया, मिट्टी समार के गुण दिती। गुणन तो बाद की होया, भगत जी कहन लगे हुण अपना परनाला च आउंदा ना, वो जो मीह पैंदा ते पानी छाते खड़ जाता है, जै सारी मिट्टी परनाले च ला के। कहते वो चक्की लोई ने मिट्टी परनाले दे लाती, घ्यो गुन के 2 सेर बिच। बस सिखा आई भगत बन जाईदा। वो घरे गया, कहना भगवान ने मीह का मौसम जहा लगता, कहती कित्थे तपता चढ़ी पई है। नहीं मैनू लगता है, तू ऐ कर अपने घ्यो किन्ना क पिया, कहनी पिया पसेरी। चल ठीक आ चूल्हा भन के लिया उरे। कहनी जै वड्डे हथ ने रोटियां कादियां पकावांगे, कहो सतनाम कित्थे पकावांगे, तैनू कहदा ना तू पट के लिया। जो अखां दियां कड्डियां बेचारी पट लिया चूल्हा। कहनी कुट इसनूं, कहंदा उन्हें डरदी रादी ने कुटता। मैं सोची जाती मेरा दिमाग खराब होया लगता, अज एक कमला हो गया लगता। चंगा भला चूल्हा ढवा दिता, कुटता। कहंदा छान इहनूं आटे ना मिट्टी नूं। कहती मिट्टी भी कदे छानी है किसी ने, कहते छान अखां दियां कड्डियां छानती। हुण कहंदा जा अपना घ्यो चक के लिया, 2 सेर घ्यो चक लिया। वो कहती हुण घ्यो की करना, तैनू कहता लिया चक के। कहती घ्यो करना की है, कहना मिट्टी गुननी है घ्यो। बस उन्हें मारिया हथड़ा रौला पाता, मर गई वे, पट्टी गई वे, मेरा घर वाला कमला हो गया वे, लोगों बचाओ। हुण उन्हें डंडा चक लिया, कहता लिया के घ्यो विच गुन। वो कहनी मैं घ्यो डोलदी नहीं, कहो सतनाम मैं क्यों डोला मिट्टी च। रौला पै गया, आंढी गुआढ़ी आ गए, फड़ के उसनूं संगल लाते, क्योंकि मगर पैंदा कुट्टण नूं बीबी नूं। फड़ के बन्नता, आखर तक रौला पैंदा रहा। भगत जी कोल खबर पहुँच गई, फिर आ गए उठ के पता सुता लैन भी की गल बनी, भगत बनया कि नहीं बनया। कहते की गल हो गई भाई, ये बन्निया क्यों है। कहते बाबा जी कहना घ्यो मिट्टी च पा के गुनो। कमला होया मूर्ख है ये। ते भगत जी कहते भलिया, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तेरी घर वाली तो माननी, तू रब नूं कित्थों मना लेगा। कोई सतनाम इस तरह भगत नहीं बनया जाता, भगती करके भगत बनया जाता है। पातशाह जी कहते रीसा करते हैं, रीसा देखा देखी सब करे। ऐ रीसा करना रब नहीं मिलता, कुछ प्रैक्टिकल करना पऊगा। देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ न पाए। जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है, सेब पई तिन थाए। जिन्ना चिर साडा हिरदा शुद्ध नहीं हुंदा गा अंदरों, साडे लक्षण नहीं बदलते, साडा जीवन नहीं बदलता, उन्ना चिर रब किवें आखे लग जू साडे। को सतनाम सी उन्हां दी सेवा प्रवान हो जाती है, जेड़े प्रैक्टिकल जीवन नूं बदलते हैं। मेरे प्रीतम जी कहते जो भगत जी ने खैर छड़ाता, कहते कोई नहीं छड़ दिओ भाई, कमला नहीं है। तो उसनूं समझाया सिमन करया कर, कोई नहीं तू भी भगत बन जाएगा।
तो इस तरह गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह जी कहते अपना प्रैक्टिकल जीवन बदलना पऊगा। फिर गल बननी आ, जिस नदर करे सो उपरे हर सेती ले बलाए, देखा देखी सब करे मन मुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेव पई सब थाए, हर गुण गावे हर नित पढ़े, रोज गुण गाया करो, गुरबाणी विचारिया करो, पढ़िया करो, जीवन नूं बदलण दी कोशिश करो। इस तरह हर गुण गाए समाए, हौली हौली तुसी आप ही रब बन जाओगे। हर का सेवक सो हर जिहा, हरी विच मिल के ओदा रूप हो जाओगे। नानक तिन की बाणी सदा सच है, फिर तो तुहाडी जबान चों निकले बचन भी बाणी बन जाणगे, तुहाडी जबान सच्ची होण लग जाऊगी। नानक तिन की बाणी सच है, जे नाम रहे लिवलाए, जिहड़े परमेश्वर दे नाम नाल जुड़े रहणगे। सो ये सी पवित्र शब्द दी विचार, जिन्नी सुन के मन्निया तिन्ना निज कर वास। जिन्हां ने गुरु की गल सुन के मननी की, उन्हां नूं अपने घर विच वासा मिल जाता है, परमेश्वर के घर विच वासा मिल जाता है। इस करके गुरु कृपा करन, गुरु वाले बनीए, गुरबाणी नूं मनीए। गुरुआं ने जो कहा अमृत छको, गुरु वाले बनो, सावट सूरत होवो, एक सच बचना नूं हिरदे विच धारण करिए, फिर ही फायदा है जिंदगी का। नहीं तो फिर तुहाडी मर्जी, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर ने महावाका अनुसार। आओ इत्थे रोकण की आग्या बख्शो। बोलदे अनेक अखर बाद घट हो जाते, सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु